جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. علماء کرام کے ساتھ ہماری یہ مختصر سی نشست ہوتی ہے. اس وقت آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور علماء کرام کے جوابات ہوتے ہیں. جناب قبلہ ڈاکٹر علامہ محمد رضا دودانی صاحب تشریف فرمائیں. وی آر ہوپنگ کہ مفتی اکمل صاحب ول جوائن اس اینی مومنٹ. لیٹس سی, ہم سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. ایک ویڈیو سے آغاز کرتے ہیں. ایک بچے نے ایک سوال بھیجا ہے, ذرا چلائیں جی چلائیں. السلام علیکم, میرا نام محمد زید ہے. جب سائرن بج رہا ہو میں نے پانی پیا تو میرا روزہ ہو جائے گا, اور سحری کا آخری وقت سائرن تک ہوتا ہے کیا آزان تک؟ وہ کہہ رہے ہیں سحری کا آخری وقت جو ہے وہ کیا سائرن تک ہوتا ہے, کیا اس طرح کا کوئی بات پوچھ رہے ہیں کوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ اس بچے نے اتنی معصومیت کے ساتھ یہ سوال کیا ہے تو اس کے جذبے کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اور کتنا اچھا وہ ماحول ہوگا کہ جہاں پر ماں باپ اپنے بچے کی اس طرح سے تربیت کر رہے ہوں گے کہ اسے ان مسائل کے بارے میں ایک شوق ہے, جاننے کا ایک شغف ہے اسے. ظاہر ہے کہ یہ اپریشیبل ہے, ایڈمائریبل ہے. اور جہاں تک ان کے سوال کے جواب کا تعلق ہے تو بنیادی طور پر جو نماز صبح کا اولین وقت ہے وہاں سے روزے کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے. صحیح ہے. تو وہاں سے اس کو روزہ رکھنا شروع کر دینا ہے. اب سائرن اگر اکارڈنگلی بج رہا ہے تو بہت ٹھیک ہے, بہت مناسب ہو گیا. لیکن اگر سائرن اکارڈنگلی نہیں بج رہا تو سائرن کا اعتبار نہیں ہے, وقت کا اعتبار ہے. لیکن یہ کہ اگر وقت کا اعتبار اس طریقے سے ہو جائے کہ ٹھیک ہے سائرن بجانے والے پر اعتماد ہے, یا اگر کسی نے اذان دی اور معلوم ہے کہ اذان وہ بالکل صحیح ٹائم پر دیتا ہے, تو ان تمام تر چیزوں کو معیارات بنایا جا سکتا ہے. دو عادل افراد کی گواہی ہو, ٹرسٹ وردی ہے, ماں باپ نے بتا دیا اور اسی پر اطمینان ہو گیا, جو عام طور پہ بچوں کو اسی طریقے سے ہوتا ہے, تو یہ بھی کافی ہو جائے گا. مناسب ٹھیک ہے. چلائیں جی اگلا سوال چلائے گا. وعلیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ اعتکاف میں اگر کسی شخص کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اچانک طبیعت کی وجہ سے, تو اس کا اعتکاف رہے گا یا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا؟ بالکل صحیح, بالکل صحیح. روزے میں اعتکاف یعنی اعتکاف میں روزہ شرط ہے, کسی وجہ سے اگر روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا اسی وقت. اگر اعتکاف میں روزہ ٹوٹ گیا تو روزے کے بغیر اعتکاف کا تصور ہمارے نہیں نہیں ہے. رائٹ, اگر روزہ گیا تو ساتھ میں اعتکاف بھی چلا اسی گیا. وقت چلا گیا جس نے میں روزہ اعتکاف کیا کو ہے. انٹیکٹ اور باقی رکھنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ روزے کو بھی وہ باقی رکھیں. اور اگر کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا اور اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا, بیمار ہو گئے, کوئی بھی مسئلہ ہو گیا, تو بہرحال ان کو گنہگار بھی نہیں مانا جائے گا, ان کو کوئی کفارہ بھی نہیں دینا. لیکن اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے کہ مثال مطلب کوئی بھی ایکسیپشن نہیں ہے کہ اگر اس وجہ سے روزہ ٹوٹا ہے, اس عذر کی وجہ سے ٹوٹا ہے تو اعتکاف باقی نہیں. اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر روزہ نہیں ہے تو پھر اعتکاف بھی نہیں ہے. البتہ میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی گنہگار اس کو نہیں مانا جائے گا اگر کسی عذر کی وجہ سے. لیکن اب وہ اعتکاف کنٹینیو نہ کریں بیکاز پریکٹیکلی اعتکاف ختم ہو گیا. اعتکاف اس کا کمپلیٹ ہو گیا, ختم ہو گیا. معذرت. جو لوگ اعتکاف میں ہوتے ہیں اور اللہ نہ کرے کوئی ایسی مجبوری آ جاتی ہے کہ اعتکاف سے نکلنا پڑتا ہے, اللہ نہ کرے کسی کی زندگی, کسی کا جنازہ اللہ نہ کرے, تو ایسے میں یہ ایکسیپشن ملتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ 1 گھنٹے کے لیے جائیں, کم سے کم اکیلے جائیں اور جنازہ پڑھ کر آ جائیں, یا پھر نہیں ٹھیک ہے پھر آپ ایسے میں ان کو یہ ایکسیپشن مل جائے گا کہ آپ اعتکاف کو تلف کر دیں اور آپ چلے جائیے بس. فقہ جعفری کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ جیسے مثال کی طبیعت خراب ہو گئی, ڈاکٹر نہیں آ سکتا, ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ گیا, تو گنجائش ہے کہ وہ اپنا علاج کروا کے واپس آ جائیں اور اعتکاف کی شکل ختم نہ ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ 24 گھنٹے کے لیے. جی بالکل. لیکن اگر مثال کے طور پہ آدھے گھنٹے کے لیے, پونے گھنٹے کے لیے جتنا جانا ضروری تھا وہ گئے اور واپس آ گئے, بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح سے فرض کیجئے کسی کے غسل واجب ہو جاتا ہے اور اس کے لیے اسے مسجد سے باہر جانا پڑتا ہے, تو اتنی بھی گنجائش ملے گی. یہ تمام تر کچھ عرفی, کچھ شرعی گنجائشات ہیں کہ جن کے ساتھ اعتکاف باطل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے بالکل. جناب قبلہ احسن نوید نہائی صاحب السلام علیکم. آئیے, کیسے مزاج ہے؟ معذرت میرا مائک ذرا لگے. آئیے تشریف کی, خیریت سے, ٹھیک ٹھاک ہے. چلیں اگلا سوال چلائیں, پھر ذرا جوابات دیتے ہیں دونوں علماء کرام سے. چلائیے گا اگلا سوال. السلام علیکم, میرا نام عبدالباسط ہے, میں اٹلی میں اسٹوڈنٹ ہوں اور یہاں پر میں ایک پارٹ ٹائم جاب کرتا ہوں جس میں مجھے ہوٹل کے رومز کلیننگ کا کام کرنا پڑتا ہے, جس میں مجھے ہوٹل کے دونوں کمروں میں 2 ریفریجریٹرز ہیں جن میں ہر روز ایک وائن کی بوٹل رکھنی پڑتی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس روزگار سے جو میں کما رہا ہوں کیا وہ مجھ پر حلال ہے؟ آپ پہلے جواب دیجیے گا. میں اس میں فقہی تو ظاہر ہے وہ بتائیں گے مولانا صاحب, لیکن میں انڈورس نہیں کر رہا جو کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن ایک طریقے سے مجھے مطلب اظہار ہمدردی یوں ہے ان سے کہ ایک تو ان کا یعنی اتنے کنسرن ہے تبھی انہوں نے سوال کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ یعنی بظاہر انہوں نے ایسی جاب کا انتخاب کیا جس میں الکوہل کا کوئی تعلق نہ کسی ایسے اسٹور پہ بیٹھے ہیں, ایک روم کلیننگ کا کام ہے, لیکن اب اس میں 100 کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ بھائی آپ نے فریج بھی بھرنا ہے اور اس فریج میں پھر آپ نے ایک بوٹل بھی رکھنی ہے. یہ جاب کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پہلے تو باقی یہ جذبات و قابل تحسین ہے کہ جو یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں اور ان کو اس کا احساس ہے, لیکن دوسری بات ساتھ میں یہ ہے کہ اسی وجہ سے ہم
ऐसी जगहों पे जाने से मना करते हैं ऐसे मौके पर कि जब आपको दीगर जायज़ हलाल ज़राए मुयस्सर हों रोज़गार के, तो आपको ऐसी आजमाइश वाली जगह पे नहीं जाना चाहिए। और चूँकि बहरहाल हमारे दीन के अंदर जो है वो शराब जो है ये कबायर में से, और हमें इसकी इजाज़त नहीं है कि हम किसी को सर्व करें, अच्छा किसी अच्छा, को सर्व करने की भी इजाज़त इसकी नहीं है। तो ऐसे मौके पर हम तो इससे मना ही ये करते सर्व करने के जुमरे में आ जाएगा। करने के ज़ुमरे में तो आएगा। आप नहीं रखा है आप फ्रिज नहीं में से। रखा है भर के, तो जो है वो ये इस तरह करना दुरुस्त नहीं है। तो ये फिर ये जॉब हलाल नहीं होगी जॉब जो है वो इस कोशिश करें दूसरी जॉब तलाश करने की। जब तक दूसरी जॉब नहीं मिल रही, इनके पास और कोई ज़रिया नहीं है, तो उस वक्त तक दिल में बुरा जानते हुए कराहत के साथ ये करते रहें। लेकिन जैसे ही दूसरी जॉब मिले उसको जो है ये छोड़ दें, ये स्विच करें। और लेकिन स्विच करने की कोशिश पूरी करें। ऐसे नहीं कि अब ये इसको ही आड़ बना लिया जाए कि भाई चूंकि आगे दूसरी मिल नहीं रही, आराम से बैठे हुए। यानी मिसाल के तौर पे इस जॉब में 1000 पाउंड कमा रहे हैं, दूसरे वाले में अगर 800 में भी मिल जाती है, इतने में मिल जाती है कि गुजारा हो जाए, लग्जरी कॉम्प्रोमाइज हो जाए लेकिन गुजारा हो जाए, तो उसको उनको वो जॉब ज्वाइन करनी पड़ेगी। हदीस के अंदर है मा कल्ला व कफ़ा खैरुम मिम्मा कसुरा व अलहा। जो कलील हो और किफ़ायत जिससे हासिल हो जाए, काफ़ी हो जाए, वो उस ज़्यादा से बेहतर है जो गफलत में डाल। क्या बात है, इसमें कोई राय मुख्तलिफ है फ़िक़ही वाले से? बुनियादी तौर पर सारी वो बातें जो सही है। आपने इरशाद फरमाई, लेकिन ये कि यहाँ पर एक्सेप्शन हमारे यहाँ नहीं है कि मिसाल के तौर पर इतना वेट करें और जब दूसरी जॉब मिल जाए तब उसको स्विच करना है, इसको छोड़ देना है। अच्छा यानी इसलिए कि ये जो शराब वाला मामला है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हसासियत पाई जाती है। अलबत्ता इतना मसला ख़राब हो जाए कि जहाँ पर कुत्ता खाना भी जायज़ हो जाता है, फिर एक अलग मसला है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो टैक्सी चलाएं, दूसरी चीज़ें करें, लेकिन ये कि बहरहाल फिर इस वाली जॉब को वो कंटिन्यू ना क्विट करना होगा इसको, ठीक हमारे यहाँ भी है। हालत कमो बेशी बात हो गई, कमो बेशी। आप जब नहीं थे तो एक सवाल ये आया था कि भाई हमें एतिकाफ़ में बैठा हूँ, किसी भी वजह से रोज़ा बातिल हो गया है, क्या उसी लम्हे साथ एतिकाफ़ भी ख़त्म हो गया? हमारे यहाँ इसी तरह एतिकाफ़ जो सुन्नत एतिकाफ़ है उसके लिए चूँकि रोज़ा शर्त है, लिहाजा जैसे ही अगर रोज़ा बातिल हुआ तो उसकी वजह से एतिकाफ़ भी ख़त्म हो जाएगा। अब रोज़े की तो वो कदा करेंगे, एतिकाफ़ का क्या होगा? अब पूरा एतिकाफ़ करना ज़रूरी नहीं है, एक दिन की एतिकाफ़ की कदा लाजिम होगी, यानी एक मगरिब से दूसरी मगरिब। चाहे ये अमल छठे रोज़े पर हुआ है तो भी बाकिया 4 रोज़ों की, 4 दिनों का एतिकाफ़ की कज़ा नहीं करनी। हमारे यहाँ जो है वही जो सुन्नत मुअक्कदा एतिकाफ़ होता है, टूटने की सूरत में लाजिम सिर्फ एक दिन का होता है। बिल्कुल सही है। वो एक दिन होता, एक दिन काउंट होगा मगरिब से मगरिब। और मैंने इसमें ये भी पूछा था आपकी दाऊदनी साहब से, आप अहनाफ के मुताबिक बता दीजिए कि अल्लाह ना करे कोई इत्तिकाफ़ में और कोई अनएवॉइडेबल इमरजेंसी आ गई है, ऐसी तबीयत ख़राब हुई कि डॉक्टर के पास जाना ही जाना है, अल्लाह ना करे किसी का इंतकाल हो गया है, कोई जाँ कनी के आलम में, तो गुंजाइश ये बनेगी कि जाएँ और विज़िट करके या जाएँ और जनाजा पढ़ के आ जाएँ, या नहीं फिर इत्तिकाफ़ आप ख़त्म कर दें और जाएँ? हमारे यहाँ कि शरई या तबई जो ज़रूरत है जिसके बगैर चारा ना हो, उसके लिए बक़द ज़रूरत निकलने की गुंजाइश होती है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और भी है कि हमारे यहाँ जो साहिबान हैं, इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद, उनके नज़दीक तो मौक़िफ़ यह है कि अगर वो बाहर गया है और थोड़ा ज़्यादा भी रुक गया है लेकिन अक्सर हिस्सा उसने बाहर नहीं गुजारा, अक्सर हिस्सा मस्जिद में गुजारा है, तो उसका इत्तिकाफ़ बाकी है साहिबान के नज़दीक। लेकिन चूंकि फतवा इमाम आदम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के कॉल पर है और इमाम आदम अबू हनीफ़ा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि ज़्यादा हिस्सा बाहर गुजारे, वो यही कहते हैं कि शरई या तबई ज़रूरत है तो शरई या तबई ज़रूरत के लिए जाएगा और फ़ौरन जो है वापस। मतलब अनएवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस में दोनों फ़िरक़ों के मुताबिक ये इजाज़त है कि आप अनएवॉइडेबल में बाहर जा सकते हैं, सही है ना? और आप बताइए कि जब आपने बताया फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक कि कि अगर रोज़ा बातिल हो तो इत्तिकाफ़ भी ख़त्म हो जाएगा, इस इत्तिकाफ़ की यहाँ तो क़ज़ा करना ज़रूरी है, एक दिन की ही सही, यहाँ भी ज़रूरी है इत्तिकाफ़ की क़ज़ा करना? एतिकाफ़ उसूली तौर पर हमारे यहाँ पर मुस्तहब एक इबादत है, नफली इबादत। मुस्तहब से मुराद फ़िक़्ह जाफ़री में हो कि कर लिया तो अच्छा है, नहीं किया तो गुनाह नहीं है, तो गुनहगार नहीं है, सिवाय इसके कि नज़र की वजह से या मन्नत की वजह से पर वाजिब कर लें आप, तो एक अलग बात है। तो अब उसके अंदर फिर होता ये है कि नफली हो या जो मुस्तहब इबादत है उसके अंदर भी पहले दिन और दूसरे दिन, हमारे यहाँ कम से कम 3 दिन का एतिकाफ़ होता है। सही है। एक दिन का नहीं, 3 दिन का एतिकाफ़ होता है। तो जो पहला दिन है वो मुस्तहब काउंट होता है, दूसरा दिन भी मुस्तहब काउंट होता है, तीसरे दिन ऑटोमेटिकली उसको मुकम्मल करना ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, यानी पहले 2 दिन तो अगर जानबूझ के भी अगर वो तर्क कर दे तो उसको गुनहगार नहीं माना जाएगा। सही है। लेकिन तीसरे दिन अगर उसने जानबूझकर तर्क कर दिया तो वो गुनहगार भी होगा और फिर बहरहाल उसको क़ज़ा भी करनी होगी, और क़ज़ा भी जो करेगा तो वो 3 दिन ही का एतिकाफ़ करेगा। अच्छा 3 दिन की करेगा, यहाँ पर 1 दिन करेगा, बिल्कुल ठीक है। वो गुस्ल वाली बात भी मैंने आते आते सुनी कि शायद गुस्ल की भी कोई बात हो रही थी इत्तिकाफ़ में नहाने के लिए बाहर जाना, गुस्ल के लिए बाहर जाना। अच्छा नहीं, हम तो वैसे पूछ रहे थे कि कोई, लेकिन आप बता दें वैसे। गुस्ल जनाबत का मसला था वो। गुस्ल तो हमारे यहाँ ये है कि इत्तिकाफ़ के लिए जो गुस्ल जनाबत है, चूँकि वो तो बहरहाल किया ही जाएगा, उसके लिए तो बाहर जाने की भी इजाज़त है। सही। लेकिन जो है वैसे गर्मी है, गर्मी की वजह से बंदा ठंडक के लिए नहाना चाहता है, गुस्ल तबरी जिसको कहा जाता है, इसके लिए बाहर जाने की इजाज़त है कि नहीं? तो इसके लिए ये है कि जो मस्जिद की हुदूद के अंदर हो,
यानी एन मस्जिद में भले ना हो, फिनाए मस्जिद उसे कहते हैं जो मस्जिद के मसाले के लिए जगह होती है, वुजू खाने हो गए, वॉशरूम हो गए, तो मस्जिद की हदूद बाउंड्री वॉल के उर्फ में उसको ये कहा जाए कि मस्जिद में ही है। ऐसी जगह पर वो जाकर गुस्ल करता है तो अक्सर उलमा के नज़दीक इससे इतिकाफ नहीं टूटता। बाज़ कायल हैं टूटने के, लेकिन अक्सर की राय है कि इसकी हमारी राय भी, हम भी फतवा इसी पर देते हैं कि इससे इतिकाफ नहीं टूटता। हाँ, अगर ऐसी मसाजिद जैसे बाज़ गाँव गोठों वगैरह में होता है कि वहाँ पर मस्जिद की हदूद से बाहर बना हुआ होता है वाशरूम, कि वहाँ पर अगर मस्जिद के अंदर कोई ऐसी सहूलत मुयस्सर नहीं है, बाहर जाना पड़ेगा, तो अगर ऐसी सूरत में वो इस तरह जाएगा, नफली गुस्ल के लिए बाहर जाएगा या ठंडक के लिए गुस्ल करने के लिए बाहर जाएगा, तो फिर इस सूरत में इतिकाफ टूट जाएगा। यही बात है, जनाबत के लिए जा सकते हदूद मस्जिद के अंदर शावर एरिया बना दें और कुछ ठंडक के लिए शावर ले ले तो कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अब ऐसे में लेकिन ये भी ख्याल कर लें कि बाज़ वक़्त मसाजिद में ऐसा होता है, जैसे कराची है, पानी वगैरह का मामला भी होता है, तो इसका भी थोड़ा दूर है तो ऐसे ही ऐसा नहीं शौकिया रोज़ ही आप जो है वो नहाना शुरू कर दें और नमाजी अब मस्जिद से निकले 5 मिनट वॉक करके चले गए आगे, और मस्जिद के नमाजी जो है उनके लिए आजमाइश हो पानी की जो है, तो इस तरह जो है वो इसमें ये भी देख लिया जाए, इंतज़ामी उमूर भी बहरहाल देखे जाएँ, कोऑपरेट किया जाए मस्जिद की कमेटी के साथ भी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चला एक आखिरी सवाल ले लेते हैं हम। नहीं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा उलमा कराम से सवाल ये है कि अगर हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए हाफ स्लीव की शर्ट पहनकर जाएं, सही है, तो क्या हमें उसका पूरा सवाब मिलेगा नमाज का या आधा सवाब मिलेगा नमाज का? मर्द हजरात मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं, हाफ स्लीव्स की शर्ट आधी आस्तीन पहनी हुई है, तो नमाज का पूरा सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नमाज हो जाएगी, ऐसा नहीं हो है जाएगी, कि नमाज नहीं मुफ्तिलात नमाज में से नहीं है। मुफ्तिलात नमाज में से नहीं है, लेकिन ये कि बहरहाल आदाब के मुताबिक जिस तरीके से होता है कि इंसान पूरी स्लीव्स के साथ वो शर्ट्स पहनकर और बाकायदा इस तरह से लिबास पहनकर, खुशबूदार लिबास पहनकर, जो आदाब की रियायत है, बाल वगैरह बनाकर अगर जाए तो ज़ाहिर है कि उसके सवाब में और इजाफा होगा। सही है, बिल्कुल इसी तरह बगैर किसी, जो अल्लामा साहब खुद कहते हैं, बगैर किसी शोशे और नुक्ते के फर्क के इत्तेफाक है। यही है, जज़ाकल्लाह। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। दोनों उलमा कराम का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके सवालात और उलमा कराम के जवाबात। हम सेगमेंट लेते हैं, एक ब्रेक के बाद हम आते हैं कुरान साइंस सेगमेंट के साथ इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह।